Hello, assalamu alaikum, good afternoon and welcome to A Sports and the ARY app. मैं हूं Fakhar-e-Alam और आप देख रहे हैं हमारी continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. और Pavilion में मेरे साथ 4 पाकिस्तान के former captains, 4 outstanding minds of the game of cricket and 4 gentlemen who I have the privilege of sharing this space with. Let me bring them into this conversation. I've got first up the young dynamic Shoaib Malik. Assalamu alaikum Shoaib and welcome. Assalamu alaikum, good afternoon and assalamu alaikum everyone. With that, I've got the most successful test captain in the Pakistan Test cricket history, Mr. Dependable, Misbah. Assalamu alaikum Misbah and welcome. Walaikum assalam. Assalamu alaikum to everyone. One of the finest wicket keepers, a man of crisis, and also former captain of Pakistan, Mr. Cricket Fingers, the silver fox of the Pavilion, Moin Khan. Assalamu alaikum Moin. Walaikum assalam and everyone. Assalamu alaikum. Yes, and with that, the cricket royalty himself, the Sultan of Swing and the champion of champions, are very good, most loved, beloved, Wasim Akram. Assalamu alaikum Wasim. Good afternoon, assalamu alaikum everyone. आप थोड़े off color लग रहे हैं आज. मैं off color लग रहा हूँ. मैंने भी वही color पहना है जो आपने पहना है. Off color means आप उतनी वो energy नहीं लग रही. क्या हुआ? Energy नहीं लग रही. बस तो ना पूछें कि क्या हुआ है. कि राती बब्बर शेर दा गोश्त खा लिया सी. नहीं, थोड़ा सा हुआ ये कि यहाँ से हम जब निकले स्टूडियो से होटल पहुँचे तो मैंने और मिसबा ने made a bad call and going into one of the restaurants in the hotel, देसी फूड का, और मिसबा ने बड़ा उस पे स्ट्रेटेजिकली कहा कि यार सुनो स्ट्रेटेजिकली ऑर्डर करते हैं, सिर्फ बारबेक्यू खाते हैं और जाके सो जाते हैं. तो मैंने कहा नहीं सुनो वो इनका ब्रेन मसाला भी बड़ा अच्छा होता है, वो खा लेते हैं, बस फिर ना पूछें कि रात भर क्या हुई है हमारे साथ, ठीक है ना. सो दैट्स व्हाई हाँ मेरे साथ मिसबा वाज परफेक्टली फाइन. तो लकड़ हजम पत्थर हजम टाइप पता है, पचा नहीं सकते तो खाना क्यों. जो खाया था उसको और लच्छे वाले पराठे खाए हैं. लच्छे वाले पराठे थे फिर यही होना सी. तो उसके बाद पपीता भी खाया है. नहीं जरूरत ही नहीं पड़ी आज. Alright, let's get to the finer points of the game of cricket. Yesterday was the big game, India versus Pakistan in Ahmedabad, और कल इंडिया ने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से मैच जीता. It was a one-sided affair at the end of the day, and a lot of upset fans on one side of the border and very happy fans on the other side of the border. So congratulations to India. They truly deserve to win. They were the better team, and that's that. But let's take a look at the match summary. This is how it went down. India, Rohit Sharma winning the toss, putting Pakistan into bat. Pakistan got somewhat of a start there, a good platform at one point, 155 run थे, 2 खिलाड़ियों के नुकसान थे, but after that we had a massive collapse and then could not finish the entire 50 overs. Bumrah, Hardik, Pandya, Kuldeep, they're all in the wickets and very good economy for all of them. And with that, India responding, it was Rohit Sharma, the hitman came out and boy did he hit. And that's how it went down. Shaheen Shah Afridi there, 2 for 36 in 6 overs. And Hassan Ali 1 for 34 in 6 overs. India won that one by 7 wickets. And कल हमने बड़ी बात की उसके ऊपर, गुफ्तगू की बड़ी, उसके ऊपर लोगों के जो हैं वो opinions आए हैं, बहुत सारे उसके ऊपर aspects हैं. So there are multiple schools of thoughts and everything. But Wasim, let me bring this to you. I know we talked कल रात को हमने बड़े इसके ऊपर तफसीली तौर पे जो है ना वो 3 घंटे 3 घंटे हमने किया, पोस्ट मैच कल किया है. But yeah, quickly let's just touch upon this. Let's go back. Now that we're looking at it a day later and thinking about it. What would have been a good total here? Because बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं 300 की तो विकेट ही नहीं थी, 330 की तो विकेट ही नहीं थी, तो 270 रख के पाकिस्तान अगर शायद अपनी इनिंग प्लान करता तो would have not been that bad. Ideally, obviously 270, 280 would have been good total to defend. But जब आपके पास 190 हो और फ्लैट डेक हो, थोड़ा सा ड्यूप ही आ जाए, और स्टार्ट जो उन्होंने लिया जिस तरीके से, उन्होंने कोई बारी बुरी नहीं ली कि सिंगल करेंगे. उन्होंने शुरू से ही आके उन्होंने कहा जी, वो कहते हैं ना प्रॉपर कार्नेज. That's what happened in first 10 overs. I mean, our main bowlers got hammered, especially Haris Rauf को उसने पहले आगे छिक्का मारा है, फिर पुल पे मारा है. और you know, but again, it's one of those games वो हो गया ना. अभी पाकिस्तान टीम के 6 मैच बाकी हैं. They have to come back. We as a nation have to be positive. Absolutely, no question about that. We have to move on very quickly. हो गया ना, भड़ास भी निकाल ली दिल की. आप सब ने पूरी रात सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, हर एक को criticize कर रहे हैं. It's okay. Let's move on, and the World Cup is still going on, and they need our support. मिसबा, हार्दिक पांड्या ने कल एक इंटरव्यू दिया
ऑन द ग्राउंड राइट आफ्टर द मैच फिनिश, और हार्दिक पांड्या ने कहा कि हम जब खेल रहे थे तो जब बाबर और रिजवान की जब पार्टनरशिप लगी हुई थी तो हमने देख लिया कि उनकी तरफ से इंटेंट नज़र नहीं आ रहा था, हमें नज़र आया कि वो टेंटेटिव हैं, हमें समझ आ गई कि डॉट बॉल्स हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, एक साइड से विकेट गिरेगी तो गेट खुल जाएंगे. सो दैट्स बेसिकली क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट टू कम फ्रॉम द ऑपोजिशन, आइडेंटिफाइंग, जिस पे हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारे लोग हमारे गले पड़ जाते हैं कि आप लोग क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बट दिस इज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिशन. देखिए, ये एक सेकंड प्लान किसी भी टीम का होना चाहिए. अगर आप स्लो विकेट है जहाँ पे बॉलर जो है वो किसी भी बैट्समैन के डिफेंस को बीट करके उसको आउट नहीं कर सकता, यानी अटैकिंग बॉलिंग आप करके आउट नहीं कर सकते, तो सेकंड जो प्लान होता है वो हर अच्छी टीम का यही होता है कि फिर डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन से चोक करने की कोशिश करते हैं दूसरी टीम को, और उसका जो काउंटर प्लान होता है अगली बैटिंग टीम का कि आप भी उन पर अटैक करते हैं ताकि वो जो स्क्वीज़ कर रहे हैं, यानी आपने सामने अगर ऊंची शॉट मारी है तो ऑटोमेटिकली उनको एक फील्डर पीछे लेके जाना पड़ेगा और वो सिंगल आपका खुलेगा, वो उसकी बात कर रहे हैं कि काउंटर अटैक नहीं किया. और पाकिस्तान की जिस तरह लोग बात कर रहे हैं कि ये पिच 300 वाला नहीं था, 270 वाला पिच था, उसको तो पाकिस्तान तो कहीं पे भी 300 रन करने नहीं जा रहा था, पाकिस्तान तो नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा था. हमारी तो सॉफ्ट डिसमिसल्स हुई हैं. टेकिंग ऑन अ बॉलर, कौन सा बैट्समैन हमारा आउट हुआ है? हमारे जितने भी बैट्समैन 2 के बाद आउट हुए हैं, बाबर थर्ड मैन पे खेलते हुए आउट हुआ है, रिजवान सिंगल करते हुए आउट हुआ है, मोस्टली जो हमारी विकेट्स गिरी हैं वो तो उसी प्रेशर में गिरी हैं. हमको ये नहीं कि 300 करने जा रहे थे. अनफॉर्चुनेट है वो पार्टनरशिप जैसे चल रही थी, अगर ऐसे चलती तो समवेयर अराउंड जैसे हम पहले फिनिश करते हैं, हम 280 270 पे ही फिनिश करते, और एक अच्छी को नीचे से अगर इनिंग हो जाती तो 300 भी हो सकता था. बट अनफॉर्चुनेटली वो कैरी ऑन नहीं कर सके उनको, और जो उन्होंने बात की वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है बॉलिंग साइड का, और वो कहीं पे भी किसी बॉलर पे प्रेशर नहीं आता, और सडनली विकेट गिरती है तो आप जो है ना एकदम फिर मैच को ग्रैब कर लेते हैं. So a lot of people, this question is for Misbah and Shoaib, especially. A lot of people on social media, on television, everywhere, have been asking one question. That question is, how come Pakistan cricket is still, the mindset of Pakistan cricket is still of the 90s? जो one-day 90s में होते थे, वो क्यों है? Why do you guys think, or how can we improve that mindset? देखिए वसीम भाई, मुझे उस चीज़ में ये लगता है कि किसी को इनिशिएटिव नहीं लेना, वो प्लेयर्स को लेना है. और जैसे मिसबा भाई ने बोला था कि इंग्लैंड टीम का जब उन्होंने कहा कि 400 दैट्स द गोल, तो वो मैसेज नीचे तक गया, और ये हमारी जो बेस है जब तक वो तक भी गया होगा. जी बिल्कुल, वही मतलब नीचे तक गया, डोमेस्टिक तक गया वो, और ये हमारे यहाँ पे भी ये करना पड़ेगा. और आई गेस हमें ये नहीं देखना चाहिए कि किसने क्या किया हुआ है, किसने कितने आउट किए हुए हैं, किसने कितने रन्स किए हुए हैं, कौन आईसीसी की किस रैंकिंग पे है, ये नहीं देखना ये चाहिए कि आया ये बंदा टीम के लिए खेलता है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है. अगर उतरता है बिस्मिल्लाह, वो बंदा सबसे पहले होना चाहिए. मेरी ये पर्सनल थिंकिंग है. उसके अलावा मुझे ऐसा नहीं है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं या बैटर्स हैं इनमें वो एबिलिटी नहीं है, इनमें वो एबिलिटी है. सिर्फ ये है कि जैसे हमारा ए के बाद को बी सी ऐसा कोई प्लान नहीं है एज अ यूनिट, ऐसे इंडिविजुअली भी नहीं है, तो इनको अपने प्लान्स बनाने पड़ेंगे. अगर मुझे एक बॉलर नहीं यार वो दे रहा तो मेरा गो टू शॉट होना चाहिए ताकि मैं उससे बाउंड्री लूँ, उसके बाद वो मुझे एटलीस्ट मेरी जो स्ट्राइक रोटेशन है वो करने दे. तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये करनी पड़ेंगी, इसका इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. All right, with that we're going to take a break right here on the Pavilion, but when we come back there's more on the other side. Don't go away, keep watching. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the AWI's app. Continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. I've got 4 outstanding cricketing minds with me in the Pavilion. I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and Wasim Akram. आइए जरा पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है. ये रहा पॉइंट्स टेबल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अब आ रहा है. India is right on top. They've played 3 games. They've won 3 matches. They look unstoppable at this time.
and with 6 points and a very healthy run rate right on top of that table. New Zealand sliding to number 2 simply because उनका run rate जो है वो इंडिया से कम है. साउथ अफ्रीका ने 2 मैचेस खेले हैं, दोनों जीते हैं और उनका रन रेट देखिए शानदार 2.26. पाकिस्तान slips to number 4 after that defeat last night और मनफी में इस वक्त पाकिस्तान का रन रेट जो है वो चला गया है. इंग्लैंड का आज का मुकाबला है. They are definitely going to improve that run rate. They're going to try to. They've won one and lost one. They want to get, they want to break their shackles, move on. Bangladesh, Sri Lanka, Netherlands struggling. So has Australia. They've played 2, lost 2. They're going to try to bounce back hard. And Afghanistan obviously would like to score 1 victory. 4 टॉप की टीमें जो है वो सेमीफाइनल की तरफ जो है वो जाएंगी. आज का मैच ये है आप लोगों की स्क्रीन पर. आज का मैच जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं. दिस इज द गेम टुडे. इट इज इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान. न्यू दिल्ली से आपकी खिदमत में पेश होगा. 1:30 बजे बराह रास्त ट्रांसमिशन चलेगी. दिस इज इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान. लेट मी स्टार्ट ऑफ विद यू मोइन. इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियंस है, ठीक है ना, और कोई ज़्यादा ज़बरदस्त स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक उनका इस वर्ल्ड कप में. दे मस्ट बी लुकिंग टू फायर अप एंड गेट गोइंग. नेचुरली पहला मैच तो हारे थे, नो डाउट वर्ल्ड चैम्पियंस है, बट ये नया वर्ल्ड कप एंड एवरी डे इज अ न्यू मैच होता है, तो आपको नई अप्रोच के साथ आना पड़ता है. बट जिस तरह प्रोग्रेस किया है पिछले मैच में नज़र आया है. डेविड मिलान की आउटस्टैंडिंग स्टार्टिंग में जिस तरह टैकल किया फास्ट बॉलर को, ऑल्दो उन्होंने अच्छी थोड़ी सी गेंद की थी, लेकिन जिस तरह प्रोग्रेस किया, जो रूट फॉर्म में, पूरी बैटिंग लाइन फॉर्म में नज़र है. बेयरस्टो ने 50 रन किए, तो ये यहाँ पे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आएगी. 2 मैचेस ऑलरेडी वर्ल्ड कप्स के अंदर खेले हुए हैं, दोनों इंग्लैंड ने जीते हुए हैं. मलान की बैटिंग आप देख लें, ज़्यादातर शॉट जो है सामने खेले इन्होंने, और ये जिस तरह ये शॉट खेला, लाइक टोटल कमांड है उनको. स्पिनर्स हों चाहे फास्ट बॉलर्स हों, जिस तरह के शॉट्स खेले हैं, लाइक कोई बॉलर्स मुश्किल नहीं कर रहा. और राशिद जिससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं विकेट्स की, वो भी विकेट टेकिंग नहीं है इस वक्त. बॉलर बहुत ही कम विकेट ली हुई उन्होंने वर्ल्ड कप के मैचेस में, या लास्ट हम 1 साल का उनके एवरेज देखते हैं. तो यहाँ पे इंग्लैंड के पास पूरा चांस है इस मैच में. मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही कि इंग्लैंड को इस मैच में होगी. अदर दे बैट फर्स्ट और बैट सेकेंड. बहुत ईजी मैच मुझे लग रहा है ऐसा. Alright, we've got David Milan with us. Listen in. Right, there you have it. Milan वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि ड्यू का फैक्टर जो है वो वहाँ पर मौजूद है. सेकंड इनिंग में आसान हो जाती है बल्लेबाजी करनी. शोएब, आप एक चीज़ इंग्लैंड की टीम के बारे में कहते रहे हैं कि उनकी बैटिंग तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर उनकी बॉलिंग के अंदर आपको हल्के फुल्के से गैप्स नज़र आते हैं. उसको ज़रा एलैबोरेट कीजिए. और आज अफगानिस्तान के लिए क्या वो स्ट्रैटेजी काम आएगी कि इनके बॉलर्स को अटैक करने की कोशिश करें? देखें, जो पहले वो मैचेस खेले उसमें ज़रूर एक ऐसा एलिमेंट था, दे वर मिसिंग द 5th बॉलर. लेकिन जब से रीस टोपली उन्होंने डाले हैं टीम में, तो उन्होंने अर्ली ऑन विकेट्स भी लिए अगेंस्ट बांग्लादेश, तो वो एंगल तो उनका कवर हो गया है. एक उनका डेविड मलान, जो रूट, जॉनी बेस्टो, इन्होंने रन्स बनाए हैं, लेकिन जो बाकी बैटर्स हैं वो उस तरह फॉर्म में नहीं नज़र आए. और एक जो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं उस पर, आदिल रशीद पे. सो फार ही इज़ बोल्ड 17 ओवर्स, कंसीडेड 89 रन्स और सिर्फ 1 विकेट ली है. और वो अब उनको ज़रा वो थोड़ा हॉन्ट कर रहा है. right. वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर रीसेंट पास्ट में हम उनकी सक्सेस देखें तो वो मिडिल ओवर्स में आदिल रशीद बहुत विकेट्स लेते थे, सम टाइम मोइन अली भी लेते थे. तो ये थोड़ा ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं. लेकिन रीस टोपली के आने से ऊपर से वो विकेट्स ले रहे हैं, स्विंग हो रहा है बॉल, तो उनके एंगल्स काफ़ी सारे जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं वो कवर हो रहे हैं. बट मिडिल ऑर्डर जो है उनका थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है. लेकिन अच्छी बात यह है कि ऊपर से 3 लोग रन्स कर रहे हैं, तो वो एक अच्छे टारगेट पे पहुंच जाते हैं. लेकिन अगर ये स्ट्रगल की किसी दिन भी ये बैटिंग लाइनअप अगेंस्ट बड़ी टीम, तो इनका जो है वो ग्राफ काफ़ी नीचे आएगा. टोपली की बात कर रहे थे वसीम. हाउ गुड इज ही? आई मीन दिस टैलेंट दैट कीप्स कमिंग थ्रू द सिस्टम ऑफ इंग्लिश क्रिकेट. Yeah, I met this young boy in Townsville, that's in Queensland. I think it was 2014, 15 maybe, I don't remember exactly. वो 19 World Cup हुआ था वहाँ पे. I was commentating, and his dad I played against Topley, the senior Topley, who played for Essex quite a bit, like a lot of first-class cricket. And he brought him to me to have a word with this boy. He was very young, very
thin and tall guy. He's about 6'5", 6'6", big unit. Wow. And I think what I like about his bowling is he hits the seam every time. और high arm action से उसका ball आके seam पे लगता है और उसको extra bounce मिलता है. He's not very quick, but he's got extra bounce and I think and he swings both ways. And that's where he troubles the batter even on flatter decks. और आज का match भी दिल्ली में है. एंड दिल्ली सो फार अभी 2 मैचेस हुए हैं वहाँ पे. आई थिंक जो ओवरऑल स्कोर हुआ है 2 टीमों ने जो किया है 754 किया है. सो इट्स अ रीलेट पिच. पहले तो बड़ा कम था, इनका एवरेज स्कोर 230 220 होता था. और रीले के बाद में 2 मैच देखे कि इट्स प्रॉपर पटाखा पिच है. All right, with that we're going to take a break on the Pavilion, but when we come back, there's more on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports 10 Sports in the Airways app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. Today it is England versus Afghanistan. और ये मैच आपकी खिदमत में बराह रास्त हम न्यू दिल्ली से लेकर आ रहे हैं. ये ज़रा न्यू दिल्ली एक्चुअली अभी तक जो वर्ल्ड कप हुआ है उसके ज़रा स्टैट्स देखते हैं. आपकी वेन्यू स्टैट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. टेक अ लुक एट दिस. दिस इज व्हाट वी हैव. वसीम मोइन कमेंट ऑन दैट. लुक एट दैट. न्यू दिल्ली में 2 मैचेस हुए. जिस तरह वसीम अभी आप कह रहे थे कि 750 रन, जरा आप उधर रन रेट देखें 7.22 पे हो रहा है. हैदराबाद में 6.06, अहमदाबाद 5.93, लखनऊ जिम मेरे सामने है, धर्मशाला जिम मेरे सामने है, चेन्नई जिम मेरे सामने है. मतलब कुछ देख नहीं सकता, जिम सामने है. बट आई इज कवरिंग द स्क्रीन. And there you go. It's been removed now, so I can see Lucknow 5.37, Dharamsala 5.31, and Chennai 4.86, 7.22 in New Delhi. Yes, Misbah. पर्चे से पढ़ लेना, आपके सामने पढ़ा. हाँ, मैं उधर से ज़रा आसान लगता है. Clearly you can see कि दिल्ली पहला मैच है हमने देखा है. एक तो टीम्स वहाँ पे ऐसी खेली हैं. साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से बैटिंग की है, फिर श्रीलंका जिस तरीके से उन्होंने चेज़ किया है, डिफरेंट मैच था. बाकी जो वर्ल्ड कप्स में मैच हो रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं डिफरेंट है. हैदराबाद भी अच्छी बैटिंग पिच है. जो उसकी प्रीवियस आपके पास नंबर्स हैं वो भी इस तरह के हैं. चेन्नई इनमें हमें नज़र आ रहा है कि चेन्नई इज़ स्लाइटली ऑन द स्लोअर साइड, इसलिए सबसे नीचे चेन्नई है और स्पिनर्स को हेल्प भी मिल रही है. कल का पिच भी स्लो था उस लिहाज से, बट स्टिल आई थिंक वो इंडिया ने जो खेला है उसकी वजह से स्टिल इट्स क्लोज टू 5.93. ओवरऑल जो पिच की जो लुक है, अच्छा गेंद आ रहा है यहाँ पे दिल्ली में, रुक नहीं रहा बॉल. कोई स्पिनर को बिल्कुल कोई हेल्प नहीं मिल रही. थ्रू द लाइन हिट्स लग रही हैं. तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी हाई. वेन्यू की थोड़ी जो साइड्स हैं, साइड्स की बाउंड्री भी छोटी है, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से शॉर्ट पिचेस बॉलों के ऊपर तो बहुत ही आसानी से छक्के भी लगे हैं इस ग्राउंड के ऊपर. हमने श्रीलंका की तरफ से भी देखा जिस तरह मैंडिस ने छक्के मारे साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को, एंड इवन साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स दे प्लेड वेल. तो ये जो डायमेंशंस है इसकी, इससे भी फ़र्क पड़ रहा है. और जब भी बैट्समैन कोई भी जाता है नेचुरली अपने प्लान्स अपने जहन में रख के जाता है कि ज़रा सी भी शॉर्ट पिच मिली या पुल या कट उसको लगता है या एक्स्ट्रा कवर भी. तो ये जो साइड्स की बाउंड्री है ना छोटी, इससे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ा है. और फ्रंट सामने की बाउंड्री भी इतनी कोई बड़ी नहीं है, बट मेनली नेचुरली बैट्समैन जब भी जाता है ज़रूर उसके जहन में ये चीज़ होती होगी. यही वजह है कि सबसे ज़्यादा इस वेन्यू के ऊपर अभी तक रन बने. ऑलराइट, आपको लेकर चलते हैं बराह रास्त पिच रिपोर्ट के लिए. ब्रॉट टू यू बाय ऑनिक. Wasim, that was your favorite part. Yeah, looks like a run feast. Yes. जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि साइडों की बाउंड्री छोटी है, स्पिनर्स के खिलाफ जो कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स हैं, और लग भी रहा है कि ग्रास है पर रोल किया हुआ है, ड्राई है, तो इतना बॉल घूमेगा नहीं इस पे. सो इट्स लाइक अ हाई स्कोरिंग गेम टुडे. मिसबा, पिच रिपोर्ट तो यही कहती है कि अफगानिस्तान ना ही खेले क्योंकि अफगानिस्तान एक तो उनकी स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है, दूसरी उनकी स्ट्रेंथ चेज नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ पहले बैटिंग है. 2 मैचों में उन्होंने सिर्फ 20 में से 6 विकेटें ली हैं. एक तो वो स्ट्रगल है उनकी. लेट्स टॉक अबाउट बिट ऑफ अफगानिस्तान. एक वो प्रॉब्लम है और दूसरी प्रॉब्लम है डॉट बॉल्स रेशियो वनडे क्रिकेट में. वो नंबर 2 पे आ रहे हैं इस वक्त आफ्टर ऑस्ट्रेलिया. ऑल्सो सॉरी वसीम, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की. अफगानिस्तान की बात कर रहे थे और जो मिसबा ने कहा कि उनकी बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है, तो ये याद रहे कि अगर आप वर्ल्ड कप की तारीख में जाएं 2019 में जो इंग्लैंड का अफगानिस्तान से मुकाबला हुआ था, तो राशिद खान ने 9 ओवरों में 110 रन दिए थे. एंड आई रिमेंबर ओएन मॉर्गन रियली वेंट आफ्टर हिम बिग टाइम राइट फ्रॉम द वर्ड गो. ये वही मीटिंग थी जिसमें उसने कहा था आई विल टेक हिम ऑन टुमारो. 76. लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि अफगानिस्तान नीड्स अ पिच, स्लो पिच. जैसे कल थी इस तरह की पिच होगी
और उस पे अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करता है और वो कहीं 250 या 60 रन कर देते हैं, क्लोज टू 250, तो देन दे कैन चैलेंज एनी टीम, मुश्किल डाल सकते हैं। लेकिन उनको अभी तक जो वेन्यूज, पहले भी वो ये मैच इंडिया के अगेंस्ट यहाँ पे खेले हैं, आज भी यहाँ पे खेल रहे हैं। अगर वो टॉस जीत के यहाँ पे बॉलिंग करते हैं, स्टिल दे डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द पिच, उनके लिए मुश्किल है। और चेज़ नॉर्मली उनका चेज़ जो है वो दे आर नॉट गुड इन चेजिंग, बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं दो बैट्समैनों पे इस पिच पे। आज भी अगर इंग्लैंड को थोड़ा बहुत उन्होंने टफ टाइम देना है, रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम वो की हैं, क्योंकि ये जिस तरह की पिच है, जिस तरह के यहाँ पर रन्स बनते हैं, सिर्फ गुरबाज ही एक ऐसे बैट्समैन है जो किसी टीम को अंडर प्रेशर कर सकते हैं। पीछे जितनी भी उनकी बैटिंग लाइनअप है, फंसे हुए हैं, डॉट बॉल भी मिडल ओवर्स में आके बहुत ज़्यादा होते हैं और वो उस तरीके से रन्स या मिडिल भी नहीं कर पा रहे, उस तरीके से रन्स भी नहीं कर रहे। आई थिंक लॉट डिपेंडेंट खिलाना चाहिए इनको अफगानिस्तान को। बट किसकी जगह खिलाएंगे? अगर एक क्योंकि मुजीब बीन स्ट्रगलिंग, स्पिन नहीं हो रहा, जिस पिच पे स्पिन नहीं हो, मुजीब इज अ इजी बॉलर। उनमें एक राशिद है, वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में, तो कोई उनके पास ऐसा स्पिनर नहीं है जो विकेट्स ले सके, तो इसलिए नूर अहमद को आज मेरे ख्याल में जरूर खिलाना चाहिए। It'll be a surprise package for English batters. And they do rely a lot on these two batters जो भी मिसबा ने मेंशन किए हैं, गुरबाज एंड इब्राहिम जदरान, और बाकी लोगों को भी तो चिप इन करना चाहिए ना। ये 2020 में तो चल जाता है ये, बट 50 ओवर इज़ अ लॉन्ग डे, लॉन्ग इनिंग्स, 50 ओवर्स, 300 बॉल, एंड यू हैव टू बैट इट आउट। अब एक बंदा गुरबाज का अभी वर्ल्ड कप में 68 रन हैं ऑफ 90 डिलीवरीज, वो अकेला इतना प्रेशर ले रहा है कि उसकी अपनी गेम चेंज हो गई हुई है कि बिकॉज ही वांट्स टू प्ले डीप। ही इज़ अ प्लेयर जिसने अपनी शॉट्स खेलनी है, खेलेगा तो वो लंबा बैटिंग करेगा, अगर वो रोकना शुरू करेगा he's going to get out eventually. All right, we're going to take a break right here on the Pavilion, but when we come back there is more to talk about this game on the other side. Don't go away, keep watching. Welcome back to the Pavilion. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the Airways app, and that was a very nice package about Rashid Khan over there. बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात की 2019 में कि जो वर्ल्ड कप उन्होंने खेला कि मैं इतना मैच्योर भी नहीं था, मैं अंदर से काम भी नहीं था अपने ऊपर, मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ था, and I had not a very good he understands that it wasn't one of the best World Cups that he had, but he is a very potent weapon in the arsenal of the Afghanistan bowling. And also I'd like to mention something separately is कि आप सब जानते हैं कि हेरात में, अफगानिस्तान का इलाका हेरात है, वहाँ पे ज़लज़ला आया था कुछ दिन पहले, and Rashid Khan has been really working very hard to raise funds to support the families, his foundation, through his foundation वो जितने भी हेरात में अफगानिस्तान में जो लोग मुतासिर हुए हैं उनकी मदद करना चाहते हैं। और बदकिस्मती से जो बुरी खबर आई है कल रात को अफगानिस्तान से, हुई आई है कि दोबारा उस इलाके में एक बहुत ज़ोरदार ज़लज़ला आया है और मज़ीद डैमेज हुआ है। सो प्लीज़ डू सपोर्ट राशिद खान। आप उनके ट्विटर के एक्स के हैंडल से जाकर अकाउंट से यू कैन सी जो उन्होंने अपनी फाउंडेशन सेटअप की है एंड हाउ टू कंट्रीब्यूट टू दैट। लेट्स टॉक अबाउट द वे दैट ही इज़ कन्वेड दैट आई एम अ डिफरेंट प्लेयर नाउ, आई एम मच मैच्योर एंड आई एम एंजॉयिंग माई क्रिकेट, सो आई हैव कम हियर टू एंजॉय माई क्रिकेट। ही लुक्स इट। I mean, he's a very useful player. अगर देखा जाए तो even white ball cricket में भी he's a wicket-taking bowler to start off with. Although he's struggling in 50 over, 13 विकेटें हैं 11 वनडेज में again top 6 teams. But T20 में he's phenomenal and he can bat, he can whack big sixes and he's a gun fielder. Yeah. So overall, lot depends. अफगानिस्तान जो टीम है इस पे बड़ा डिपेंड करती है bowling में, batting में, fielding में, and he does lead from the front. Like I said, he plays leagues all over the world, one of the most expensive players and a match winner. Yeah, no question about that. मुगीज़ को बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया उन्होंने शोएब के दूसरे एंड से मुगीज़ जो थे वो जब ऑपरेट करते थे gave him more room to perform better. बिल्कुल ऐसा होता है जब दूसरे साइड से भी जो है प्रेशर पड़ा हो, तो एज़ वी ऑल नो ही इज़ अ विकेट टेकिंग बॉलर, तो जब दूसरे साइड से रन्स नहीं आ रहे होते हैं तो फिर आप और लीथल हो जाते हैं, क्योंकि बैटर्स जो हैं वो फिर कोशिश करते हैं कि दोनों साइड से जो है वो टारगेट किया जाए बॉलर्स को। तो आई गेस इट्स अ पार्टनरशिप, जैसे दो बैटर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, रनिंग करते हैं एक दूसरे के लिए, गाइडेंस देते हैं, या समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर आपको
टफ लग रहा है कोई बॉलर तो वो दूसरा वाला कहता है मैं इसको आई डील विद हिम, जैसे मैंने किया था आपके साथ निटीनी के खिलाफ। जी बिल्कुल, वो अभी तक मेरा डोला सुननी है। That's a good one. So it's a team game और पार्टनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो सिर्फ बैटिंग में नहीं चाहिए होती, बॉलिंग में भी चाहिए होती है और फील्डिंग में भी चाहिए होती है कि अगर कोई फील्डर जो है वो उसका कॉन्फिडेंस लो है पर्टिकुलर पोजीशन पे फील्डिंग करने के लिए, तो बाकी जो है वो उसको हेल्प आउट करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है यार, उस हॉट स्पॉट पे नहीं खड़े हो, अगर इफ़ यू नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक दैट हॉट स्पॉट पोजीशन, तो मैं उसको ले लेता हूँ फॉर दैट गिवन पर्टिकुलर। Basically working in pairs and hunting in pairs. And who would know better hunting in pairs than the two W's? आगा बाटा, and you used to be the keeper behind. तो आपसे बेहतर कौन जाता होगा? अब हाँ, बार-बार ये इन्हीं की स्टोरी उस दिन ही बताई थी। ये कॉन्फिडेंस तो दे, तो मोइन से ले बना जब बैटिंग करने गए, तो जैसे उसने शोएब को कहा था कि नतीनू को तू फेस कर, और बड़ा बहादुर क्रिकेटर था मोइन, बट we used to have fun on the field as well, especially as a batters अगर under pressure हैं हम, तो I think the best way to come out of pressure was to just say silly stuff to each other. वही डर्बन में वनडे था। Yes, I want to hear. I think I told this story before. मोइन के सामने सुनाई थी। डर्बन में वनडे था। I think we bowled first, and they scored about 280, 290. It was a lot those days, and एज यूजुअल हमारी सेकंड बैटिंग थी और अंडर लाइट्स डर्बन में बॉल हिलता है तो एकदम से हिलना शुरू हो गया। एक तो था ना कि स्ट्रेट अवे शॉन पॉलक और क्लूजनर नया आया था और ठीक ठाक तेज था। पाकिस्तान बैटिंग करे तो वैसे ही हिलना शुरू। तो हम आई थिंक 60-70 पे 6 आउट हो गए एज ऑलवेज अंडर प्रेशर। सो मोइन वाज एट 7, आई वाज एट 8. So I went in to bat and obviously pressure था, एक तो तेज़ बॉलर लगे हुए थे, लाइट्स थी, पैक हाउस था, तो एक जेनेरिक चैट करते हो अगर शोएब है या मोइन है दूसरे एंड पे, टू जस्ट फील कंफर्टेबल। आप जाते हो, वो अगला कहता है यार हल्का सा बाहर निकल रहा है या अंदर आ रहा है, कोई नहीं आराम से खेल, यू बी फाइन। तो मैं मोइन के पास गया, मैं क्या हाँ भाई की हो रहा है, अब बता तो नहीं क्या कहता मुझे। वसीम मैंने आती ना सर नीचे करते हुए आ रहे और मुझसे आंखें भी नहीं मिला रहे, कह रहे की हो रहा है। मैंने कहा है तो मैंने पता नहीं पाइन की हो रहा है, बट पहला टुम में बाउंसर ज़रूर करते, वेलकम बाउंसर करते। उधर से आया क्लोजर, उसने बॉल किया है वसीम भाई को, तो वसीम भाई यूँ थे और बॉल यॉर्कर था। कुकर थे और बॉल यॉर्कर। जब आपने मुझे मोइन भाई कहा ना निटीनी तुम्हारा पॉलक मेरा, तो मैंने दिल में सोचा पता है क्या, मैं मर जाऊंगा तो फिर संभाल लेना। This is serious happened to me. Nothing about Pakistan cricket. I'm talking about. It's a funny incident. Yeah. Take it as fun. Can I just hold you there because I need to take a break? But sure. I do want to hear this incident. Please save it for us. We'll see you on the other side of the break. Remember, there's a Wasim Akram incident coming up on the other side of the break. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app, and we're getting close to the action. It's Afghanistan clashing with England in New Delhi. But break पे जाने से पहले वसीम हमें एक किस्सा सुना रहे थे। वसीम, there was an incident you were about to share, which was not from cricket, but otherwise. Please share. We have half a minute to 45 seconds to the toss. Do we have time? No, we have time. We do? We have. अगर तूने काटा ना तुसी मैंने डंडा फाड़ लेना। तुसी मैंने फाड़ लेना। लम्बा पा देना। अच्छा, कीनिया में मैच था हमारा, मिसबा played that game as well. We were just remembering टॉस हम हार गए, ऑस्ट्रेलिया से मैच था, ट्राई सीरीज थी अगेंस्ट केन्या पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। केन्या का वेदर इज़ ब्यूटीफुल ऑल ईयर राउंड, बट 20, 22, 24 डिग्रीज और डे गेम्स थे, लाइट्स नहीं थी, वो पिच पे थोड़ा घास भी था और वो नमी भी थी। एज यूजुअल टॉस हार गए हम। तो मैं तब आई थिंक 2000 की बात है, 2002 ये वही है वो जब आपने विकी भाई को कहा था विकी होला कराई वो फिर स्टेडियम। अच्छा तो 2001-2 की बात है। अब मैं सीनियर प्लेयर था, एंड ऑफ माई करियर था, टॉस का पता लगा, अच्छा क्यों है जी हार गया, मैं क्या हो ऐकी हो गया। अब क्रिकेट देखी हुई थी मैंने, मैं कोई नहीं कर लेंगे अपने बैटर्स, दिल में तो यही सोचता है ना बंदा। तो अखबार केनिया में था, 2-1 सफ़े जो आते थे पढ़ने उस वक्त अंग्रेजी के स्पोर्ट्स के, वो लेके मैं बाथरूम चला गया, ड्रेसिंग रूम में पीछे था, तो जूनियर 12th मैन या जो भी था, मैंने कहा यार मैं बाथरूम जा रहे हैं, मैं जस्ट इन केस, मुझे पता यार अभी तो मेरा ढूंढ रहे हो अगर आपको ढूंढेंगे क्यों, अभी तो गए अंदर ओपनर। सो दैट वुड हैव बीन, खैर अब चले गए ओपनर। अब मैंने पहला सफ़ा पढ़ा बाथरूम में, दूसरा सफ़ा पढ़ा,
तीसरे पे भी आया था तो नॉक हो गया। मैं कहा यार की हो गया, 2 मिनट सुकून तो लैन दो। कहना भाएं पैड कर लो। मैं क्या मतलब पैड कर लो? कह रहा भाएं 5 आउट हो गए ने। मैं कहा यार पाकिस्तान टीम बंदा बैतुल खला भी नहीं जा सकता सुकून में। That's a good one. सुकून एक ही पेज लेके जाना चाहिए। बस सुकून ही की तलाश है वसीम हम सबको। वो सुकून नहीं हमें जो है वो कहीं पे नहीं मिल रहा। बैटिंग में तो कभी नहीं मिला, प्रेशर में रहे हैं। वो जब वेस्ट इंडीज से मैच होता था, अगर एक आउट हुआ है हमारा पहला, तो इमरान भाई पैड करके ना तैयार होके बैठे पुल्ले मारते थे। All right, we're going to take you straight to New Delhi where both the captains are walking out and it's time to flip. Alright जनाब, खबर जो है न्यू दिल्ली से है कि इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। बैटिंग विकेट नजर आ रही है। अफगानिस्तान के कप्तान की बात आप लोगों ने सुनी, उन्होंने कहा कि 300 का जो टारगेट है वो एक अच्छा टारगेट होगा यहाँ पर खेलने के लिए। एक चेंज आई है टीम के अंदर मिसबाह अफगानिस्तान की। जी जी बिल्कुल, जहाँ तक मुझे समझ है नजीब की जगह इकराम अली खेल रहे हैं, विकेट कीपर बैटर हैं। क्योंकि फॉर्म में नहीं है, रन्स नहीं कर रहे थे वो, तो उसकी जगह उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया अपनी बैटिंग डिपार्टमेंट को। बट ऑब्वियसली मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी उनकी टॉप 3 पे ही है। और अगर कोई चांस इनको थोड़ा सा नज़र आएगा इंग्लैंड के अगेंस्ट, रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान विल बी द की। एक बड़ा 100 इनमें से किसी से होगा तो देन दे विल बी एबल टू स्कोर समवेयर अराउंड 300, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट। और चैलेंज होगा इंग्लैंड की पेस। यप, ये प्लेइंग 11 आ रही है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। शोएब, टेक अस थ्रू दिस अफगानिस्तान प्लेइंग 11 प्लीज। गुरबाज, इब्राहिम, रहमत, हशमत, नबी, इकराम, ये जो आज एक चेंज है, नजीबुल्लाह ज़दरान की जगह अजमत, उमरज़ई, राशिद, मुजीब, फजल, नवीन, तो एक ही चेंज है इनकी साइड में। बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं स्पिनर्स पे। ये इंग्लैंड की टीम है, इंग्लैंड की टीम वसीम को देते ना आज। वसीम Yeah, it's a very good side. If you see the openers are in good nick. Root got some runs. Brook, Butler at 5. He hasn't even fired yet. Livingston can hit big. Vokes is bowling well. As I heard to Sapet Khrabda, but that's good news that he's playing. Then of course Sam Curran, an all-rounder. Then Mudd with pace, and Topley got back in the last game. So no change from the previous game. And of course आदिल रशीद जो कि अभी इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाया बगैर अर्ली डेज इन द वर्ल्ड कप। गुड साइड। ऑलराइट, विद दैट वी गोइंग टू टेक अ ब्रेक, बट व्हेन वी कम बैक देयर इज मोर ऑन द अदर साइड, डोंट गो अवे। Right, welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड दी ARY's ऐप। कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023। और न्यू दिल्ली से खबर यह है कि इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। अफगानिस्तान को बल्लेबाजी करवाएंगे ये। In other news, the news is that the Sri Lankan captain has been ruled out of the rest of the World Cup. That's really sad. The injury has, I think, injury has taken toll on him. I don't know what exactly the injury is. But how does that set them back? I mean, they're already, a young team trying to gather momentum. They put up a good fight against South Africa, and they actually had a great game with Pakistan. Yeah, it's very sad for Sri Lankans. I mean, they World Cup से पहले उनके main player 2-3 इंजर हो गए। टिक्शाना, हसरंगा, the main white ball cricketer, not just for Sri Lankan team, the world stage पे उससे ऐसा कोई cricketer नहीं है। And then of course चमीरा जो कि 145-140 करते हैं, लंबा fast bowler, वो भी इंजर हो गया। अब कप्तान भी चला गया, so they'll be struggling. I don't know who they'll have some captain in the squad, but still Kushal Mendes will take over. Probably he will, but Kushal Mendes will take over. Yes, he is. What I like about Shanaka is a very calm guy. Sri Lankans usually are. Yeah. You know, Sri Lankan as a nation, very nice, happy, good, laid back. nice, hardworking, Yeah. focus. But it'll be a big drawback for Sri Lankan side, I must say, in this World Cup. All right, with that, it's time for Palmolive Natural Expert Predictions. Right, Janab, let's start off with you, Shoaib, today. England. Moin? England. Skip? Same for me, England. Misbah? अफगानिस्तान नहीं, इंग्लैंड। बहुत अच्छे। पुट्ठी कर ली नहीं, मतलब बड़ा जबरदस्त उन्होंने ये तरीके से लेके आए। सज्जा दिखा के खंबा मारे। आधा घंटा रोटी लेट कर दो। सदा इस बात पे। And those are your expert predictions. जी मिस्बा, who is your player to watch out for? इट बिट गुलकान, ते मैं मंगेया मारगुड।
I like that. Yeah, It's got a ring to it. Yeah, and you gave this to ये him, कौन सा right? गेम है ये 8 बिट गेम गुलकंद वाला? इसको पूरा तो करें, इसका कोई कंप्लीट तो वर्जन होगा कोई? मजाक में पता है लोगों को। मजाक इसका में पता है। बाकी का वर्जन जो है ना वो पिछले रूम में वसीम भाई ने क्या बताएंगे। Yeah, I will tell you after this. After the break. Yeah. You can't share it on air, right? No, you can't. Difficult. But ये Wasim, But it's stop actually giving these things to Misbah. Of all the people handing over, loves it. Yeah, that's what I'm saying. Handing over such lethal weapons of self-destruction. You mean pearls of wisdom? Pearls of wisdom. ये बात तो बहुत दूर तक जाएगी। Mark Wood. जी। It bit Gulkand, Mark Wood. For me, it bit Gulkand. I'll go for Gurbaz. Gurbaz. जी मोइन। जॉनी बेस्टो। नहीं पूरा करके ना। पूरा बिट गुलकंद जॉनी बेस्टो। जॉनी बेस्ट्रो। ओके। हाँ जी शोएब। It bit Gulkand Joe Root. Joe Root. All right, जी. It bit Gulkand, and that was your player to watch out for. Right. So, how do Afghanistan go about their business today, Misbah? Not there, right? They have to go it professionally. आई थिंक जैसे उनके कप्तान ने कहा, इंग्लैंड की बैटिंग फिर जिस किस्म की पिच है, दे नीड समथिंग ओवर 300 और उसके लिए उनके टॉप 3 बैटर्स रहमानुल्लाह गुरबाज, ही इज़ द की। उनके रन्स करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए। देन दे हैव अ स्कोर टू बेसिकली फाइट, क्योंकि उनके स्पिनर्स जो हैं वो तभी प्रेशर डालते हैं, राशिद खान तभी इफेक्टिव होंगे जब दूसरी टीम पे प्रेशर होगा कि हमने मोर देन 6 एंड ओवर करना है। Right. Okay. I really hope that we get to see a century from Afghanistan. One of the batters. Yeah, let's hope so. It's good for cricket, good for the World Cup. Absolutely. Yeah, absolutely. And for the English bowlers, what are they going to go about? Sorry, Moin. नहीं, मैं कह रहा था पिच बहुत अच्छी है। एक अच्छा मौका है अफगानिस्तान बैट्समैन के लिए यहाँ पे कमबैक करने का, क्योंकि अभी तक हमने देखा है जो डॉट बॉल्स का रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है अफगानिस्तान का 57%। तो यहाँ पे नए बॉल से चांस होगा, जिस तरह की पिच है बल्ले पे आने का चांस है। वो अलग बात है कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग अगर यहाँ पे टॉपली और वुड कर गए तो मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन यहाँ पे एक चांस है, एटलीस्ट मिडिल ऑर्डर को भी चांस है। अच्छी पिच है, बज़ाहिर लग रहा है कि बॉल बल्ले पे लगेगा, यू नो। तो एनीथिंग 300 मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड को मुश्किल में डाल सकता है यहाँ पे। तो अफगानिस्तान के लिए तो मुझे ऐसे ही लगता है कि इनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, एक बहुत ही बेटर पिच, मैं कहूँगा बल्कि सबसे अच्छी पिच अभी तक जो ओवरऑल वेन्यूज़ के अंदर है वो दिल्ली की है। All right. Any last words for Afghanistan, Shoaib? सिर्फ ये बड़ी टीम से अफगानिस्तान का मैच है और लर्न करें। It's a learning process for them. I think that's a very good way of doing it. Is go about learning every time, pick up. And with that, gentlemen, thank you very much. आपके कहने पे मैंने lunch late करवा दिया है, जैसे कि आपने बोला था, Shoaib. And we are going to see you on the other side of this game. Keep watching eSports and Sports and the Zap app. We're taking you live to New Delhi for Afghanistan versus England. See you on the other side.